prepare prepare an introduction in 1 minute, and the second one was just a second, guys. Yes, and the second one was to record yourself while you are speaking and look at yourself with the audio, with the music, with the video on. Second one was yourself muted. So I hope you guys must have done it and found your mistakes and flaws and how you guys can improve it. I believe most of them have joined and we can start today's session. Anybody has any doubts regarding the previous two sessions regarding modeling, pageantry, personality, anything? You guys can type or you guys can unmute and ask. Today's session is going to be more of an interactive kind of a session where we'll discuss mostly the question and answers, the basic question and answers that will be asked on a national stage. So I'd prefer and request each one of you, if you can, to please turn on your videos for today. It will be easier to communicate. No, sir, no questions. Okay. Is portfolio necessary in modeling and pageantry? Like I told you guys, you don't need an expensive or very professional portfolio. First thing you need is a set of Polaroids, which is very basic and natural pictures clicked under the sunlight on your terrace in black t-shirt and black jeans, which is going to be a very natural and raw organic look of yours, which will present to agencies and modeling and casting coordinators, on the basis of which they can judge how you look in real life and how you actually look, apart from the lighting, the camera, and the makeup that we use professionally. And regarding the second thing that we require is just a set of pictures in different kinds of outfits, like one in ethnic wear, one in a tuxedo, one in a gym wear, one in swimsuit, one in casual wear, and I don't think there are more outfits. And by these 4 to 5 outfits, anybody will be able to judge कि आप कपड़े पहन के कैसे लग रहे हो, या आप कोई भी एक्सेसरी लाइक अ वॉच और अ हेडफोन, ईयरफोन, यानी चेन, ब्रेसलेट पहन के आप कैसे दिखते हो, आप कैसे पोज करते हो. You just need that. So you can collaborate. Polaroids के लिए you don't need anybody. You just need any family member or your friend who can click these pictures for you. And for a portfolio, sorry, you can collaborate with any of your friends who is a photographer and just go to any studio or any place where you can, with good lighting, where you can click these pictures, which will help you to present it to casting agencies and modeling agencies. Expensive portfolio is not required anywhere. And if anybody in the future or in the past has asked you or will ask you regarding making a expensive portfolio, कि आप इतने पैसे दे दो आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी, आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है ना, आप बॉलीवुड कैसे जाओगे, या आप बड़ी एजेंसी या बड़े ब्रांड्स को के साथ कैसे काम करोगे, देन दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, क्योंकि ऐसी कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं होती है प्रोफेशनल वर्ल्ड में.
ठीक है, मैंने जो बोला कि एक पिक्चर हर एक आउटफिट में रिक्वायर्ड होता है, वो भी फॉर अ टाइम बीइंग ही होता है। वो आप भेजोगे तो इन रिटर्न आपको एजेंसीज या कोऑर्डिनेटर्स हमेशा आपके पोलराइड्स मांगेंगे ही मांगेंगे, बिकॉज दे वांट टू सी कि आप रियल लाइफ में कैसे दिखते हो। क्योंकि हर एक शूट में कई बार मेकअप आर्टिस्ट कभी कभी नहीं होता, या फिर जो डिजाइनर या जो ब्रांड होता है उनको नहीं चाहिए होता हैवी मेकअप एंड एवरीथिंग। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर स्किन, ऑफ योर हेयर, ऑफ योर लुक्स, योर प्रेजेंटेशन। आपके चेहरे पे या बॉडी पे फैट नहीं आना चाहिए। इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। इसीलिए वो देखना चाहता है कि आप रियल लाइफ में कैसे दिखते हो। इफ यू आर प्रेजेंटेबल इनफ दैट यू कैन गिव जस्टिस टू द ब्रांड और द डिजाइनर, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर द ब्रांड। इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आप रॉ एंड रियल कैसे दिखते हो। तो एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें हैं वो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, वो भी अगर आपके पास नहीं है, या आप उसके बिना अगर आपको सोच रहे हो कि आपको काम मिलेगा और यू विल वर्क, देन दैट इज नॉट पॉसिबल। बेसिक चीजें आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एनी अदर क्वेश्चन? Hello, sir. हेलो, यस। How are you, sir? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? I'm fine, sir. My name is Paras Ahuja. Okay, I'm from ओके। Mumbai. Uh, I want to ask, is there any age limit, sir, for this field of modeling? नो, सी, एज अ एज अ मॉडल यू आर अ मैनिक्विन। Okay, so even as a kids model, even as a teenage model, as an adult model, as a couple model, as a senior model, there are different categories, है ना। कपड़े हर कोई पहनते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स हर कोई यूज करता है, वॉच हर कोई पहनता है, चेन हर कोई पहनता है, हेडफोन सबको यूज कर रहा है। एंड डिफरेंट एज, हम लोग मॉडलिंग कोई भी ब्रांड किस चीज के लिए कराती है, अलग अलग एज ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए, एज अ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि हम 16 साल से 20 साल की लड़कियों के या लड़कों के कपड़े बनाते हैं। So they will take the models who are in that age group. Then they will target the audience or the customers that are in that age group. ठीक है। सो वट एवर योर एज इज, आप कुछ एज के हिसाब से, इवन इफ यू आर 60 और 70, आप मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। आई आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 4 years old एज अ किड्स मॉडल। मैंने तब भी बच्चों के कपड़े एंड एक्सेसरीज ये सब के लिए शूट किया है। एंड देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल लाइक मिलिंद सोमन एंड अदर इंटरनेशनल मॉडल्स लाइक हर्नान ड्रेगो, हु आर इन देयर 50s और 60s, एंड वो आज तक मॉडलिंग कर रहे हैं। वो किसके लिए मॉडलिंग कर रहे हैं? उस अपने एज ग्रुप के कपड़ों के लिए, या उस ब्रांड के लिए, उस डिजाइनर्स के लिए जो उस एज ग्रुप के लिए या उस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के लिए बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स। तो कोई एज लिमिट नहीं होता है इसमें। Okay. बेस्ट एज आई वुड से इज लाइक 18 to 35, कि उस टाइम पे सब, क्योंकि मोस्टली तो सारा जो ग्लैम एंड चकाचक जो सारी चीजें होती हैं उसी एज ग्रुप के लिए होता है। उधर थोड़ा आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, काम ज्यादा मिलता है, ठीक है। यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द सेट। उसके अलावा बाकी भी होता है। Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? हेलो सर। हेलो, हाय। सर मैं पूछ रहा था, मैंने जैसे चैट जीपीटी के ऊपर पोर्टफोलियो का एक फॉर्मेट निकाला मैंने। उसने मुझे फॉर्मेट दिया कि ऐसे मेरे मुझे डिटेल्स देनी है पहले मेरा, उसके साथ में इंट्रोडक्शन वगैरह की एक वीडियो आपने भी बताया था उसका मुझे। और मैं मेन पोर्टफोलियो के लिए निकाला। उसमें मेरी डिटेल जैसे एज, हाइट, लोकेशन वगैरह वो डालने के बाद में कुछ फोटोज उसने मुझे टाइप्स बताए कि इस तरह के फोटोज मुझे उसमें ऐड करने हैं। तो मैं उस तरह से अपने घर के अंदर ही फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बना सकता हूँ। घर देखो, आपको ना, इफ देखो क्या होता है, हर एक सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। कभी हो सकता है कल को आपको मिस्टर मनीष मल्होत्रा कांटेक्ट कर लें, ठीक है, एंड वो कल को बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक या लैक्मे फैशन वीक कर रहे हो, एंड उनको अगर आपके घर के खींचे हुए फोटोज पसंद आ गए, तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है। जी सर। लेकिन कल को मान लो कोई लोकल डिजाइनर कोई बहुत बड़ी शो करा रहा है, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए एकदम ग्लैमरस फोटोज आपके, ठीक है। तो ग्लैमरस तो जरूरत ही नहीं होता। जरूरत क्या होता है? बेसिक, वो आपको स्टूडियो में ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो सबके लिए इन जनरल एप्लीकेबल होता है, चाहे वो मनीष मल्होत्रा हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल डिजाइनर हो, चाहे वो कोई लोकल डिजाइनर हो आपके शहर के। तो जी घर सर। में खींचे हुए फोटोज, अगर आपके घर के एनवायरनमेंट या दीवारें या लाइटिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर वो प्रेजेंटेबल है, ठीक है, इतना सेंस आप में भी होगा,
कि अगर आप ये फोटोज किसी को भेजोगे, आप खुद रोल रिवर्सल करके देखना, अगर आप कोई डिजाइनर या कास्टिंग डायरेक्टर हो, क्या आप ये फोटोज देख के किसी को सिलेक्ट करोगे? जी आप ये सर। सवाल खुद से पूछना। ठीक है, सो इफ द फोटोज आर वेल एंड गुड, अगर आप थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, पोर्टफोलियो में, पोलराइड्स में एडिटिंग नहीं करना है, अगर आप जी सर। पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत एडिटिंग, लाइटिंग, किसी एडिटर को की हेल्प की से अगर आप कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। बट आई वुड से थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। आप जिम जाते हो, डाइट लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, स्किन केयर, हेयर केयर, आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, खुद की पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट करोगे, ऑनलाइन ग्रूमिंग क्लासेस लोगे, मॉडलिंग क्लासेस लोगे, आप हम ऐसे बात करेंगे, विल शेयर द नॉलेज एंड स्टाफ। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में हर जगह ही हर कोई करता है। आप सीए जी कर रहे सर। हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एमबीए कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो तब भी करोगे। यहाँ पे भी दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बहुत लोग समझते हैं कि यार मॉडलिंग में हमें सिर्फ पैसा कमाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट होगा, मेहनत होगा, एजुकेशन होगी, तभी अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन यहाँ पे फिर आपको काम मिलेगा एंड विल ग्रो योर करियर। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। तो जी। एग्जैक्टली। एनीबडी एल्स? Any other question, or we'll start with the question and answers, which is the most important part of pageantry. Okay, I guess we can start. So, the most important part as a pageant contestant, and that is communication. ठीक है, आपके लुक्स पे आप ध्यान दे दोगे, आपकी पर्सनालिटी पे आप ध्यान दे दोगे, आपके वॉक को आप 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपको एक शार्प प्रेजेंस चाहिए होता है एंड एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है। ठीक है, आप कहाँ पे हो, आप किसके सामने बैठे हो, आप अपने दोस्तों के सामने अलग तरीके से बात करते हो, आप अपने पेरेंट्स के सामने अलग तरीके से बात करते हो। तो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द जजेस एंड व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द नेशनल क्राउड, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एक अलग तरीके से आपको बात करना होता है। ठीक है, और वो डिफरेंस होता है हर जगह की। और ये चीज, ये समझ होना, ये शार्प प्रेजेंस होना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, ये बहुत जरूरी है, स्पेशली पैजेंट में। क्योंकि आज मान लो आप आज कंटेस्टेंट हो, कल अगर आप जीत जाओगे, काफी लोगों की नजर आप पे होगी। ठीक है, देन यू कैन नॉट बी अ लूज कैनन एंड यू कैन नॉट थिंक कि अरे मैं तो कुछ भी स्टोरी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैं कुछ भी डाल दूंगा, फेसबुक में कोई भी फोटो डाल दूंगा, मेरी मर्जी, मेरा अकाउंट है ना, किसी को क्या लेना देना है। बट एज अ रोल मॉडल एंड एज अ मीडिया पर्सनैलिटी वो चीज नहीं चलती है। You have to take care of whatever you are saying and doing on the internet। ठीक है, क्योंकि ये 20 साल पहले वाला जमाना नहीं है जहां हम एज अ मॉडलिंग करने जाते थे, फोटोज मैगजीन में जाते थे, एंड हमारी पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की भी लोगों को कोई आइडिया नहीं थी, हम आप भी आ कहाँ जाना हैं, एक बार क्या कल कर रहे टाइम हैं। निकाल के। हाँ मैं आ जाऊंगा। लोग मैंने सिर्फ फोटो मूवीज करते थे या शूट्स करते थे उस टाइम पे। फोटो ले आना जो अपन ये चिपका के गाइस, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? दिनेश। कह देना आप तो क्या। ठीक है, लेकिन ये आज का जो जमाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अभी उधर ही सिग्निफिकेंट रहते है, हो। क्योंकि ये हमें असिस्ट भी करता है, हमें हेल्प भी अच्छा करता है और ये तो मधुबन में रहते हैं हमारे ना। करियर को और ग्रो करने में। ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे शेयर कर रहे हो पब्लिक में। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, कम्युनिकेशन आपकी एक्शंस के थ्रू भी होता है। व्हाई? बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आजकल को मैंने अगर अपनी एक फनी सी स्टोरी डाल दी, एक पोस्ट डाल दिया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सो मैं उससे क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उससे क्या मैसेज भेज रहा हूँ, दैट आई एम हैविंग अ गुड टाइम, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एंड व्हेन यू आर अ मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंटरनेशनल, वट एवर, अगर आप एक पैजेंट में हो, एक कंपटीशन में हो, कोई भी कंपटीशन में हो, देन यू आर अ रोल मॉडल। एंड स्पेशली इन पैजेंट्री, एज अ रोल मॉडल, आप यू डोंट मॉडल। ठीक है, एक मिस्टर इंडिया कभी मॉडलिंग नहीं करता, एक मिस्टर इंडिया बोलता है, ही स्पीक्स, दे गिव देयर प्रेजेंस, दे कम्युनिकेट देयर आइडियाज। ठीक है, वो जीतते ही इसी वजह से है
अपने माइंडसेट की वजह से, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो स्टेज पे। एंड वही फिर ऑडियंस को और लोगों को और जजेस को भाग जाता है कि अरे इनका दिमाग कितना अच्छा है ना, या फिर ही इज सो अहेड ऑफ हिज टाइम। ही माइट बी 20 years ओल्ड, बट इनकी थिंकिंग तो एक 25 साल या 30 साल वाले बच्चे और लड़के की है। तो आपको वो माइंडसेट कल्टीवेट करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, एक स्माइल के साथ स्टेज पे जाना है। ये बहुत ही हम्बल हम्बल किंग वाली पर्सनालिटी रखते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था। और खुद से ही आपको compete करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, ये नहीं सोचना कि मैं उसको कैसे हराऊं, इसको कैसे हराऊं। खाली अपने जीतने पे फोकस करना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट हो जाता है कि बहुत लोग ना सिर्फ सोचते कि अरे क्वेश्चन आंसर राउंड है, हम जाएंगे चैट जीपीटी या गूगल में प्रिपेयर करेंगे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेंट्री क्वेश्चन, हो जाएगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में ना सारी जो फॉर्मूला है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि एक विनर विनर कैसे बना। ठीक है, अगर मिस्टर रोहित खंडेलवाल 2016 में मिस्टर वर्ल्ड बने, सो देयर मस्ट बी समथिंग। वो सिर्फ गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके, या किसी पेजेंट कोच के पास जाके वो ये प्रिपेयर नहीं किए होंगे। उन्होंने खुद भी बहुत चीजें ऑब्जर्व की होंगी, सोची होंगी प्रीवियस विनर्स की, कि ये कैसे जीते, वो कैसे जीती, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। सो यू नेवर हैव टू स्टॉप लर्निंग। एंड कम्युनिकेशन एक बहुत वाइटल पॉइंट है। आप लोग आज चालू करेंगे तो शायद अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप लोग इसमें मास्टरी गेन करेंगे, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। वी आर वर्किंग विथ पीपल एंड वी आर वर्किंग फॉर पीपल। आप लोगों को डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के आसपास रहना है, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना है, उनको खुश करना है, एक चार्मिंग पर्सनालिटी लेके जानी है, और आपको ऑडियंस को भी खुश करना है। जब आप आपकी कोई मूवी लॉन्च होगी या फिर आप कोई ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगे, आपको बोला जाएगा हाउ डू यू फील, ये वो, अगर आप वहाँ चुप होके खड़े रहेंगे ना, आई फील वेरी गुड, थैंक यू, तो ऑडियंस को भी लगेगा यार कि तो किसी एरे गेरे को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर है, किसका लॉन्च हो रहा है। यू हैव टू से, यू हैव टू स्पीक, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस कोई भी तरीके से नहीं करना है, एक्सप्रेस एक सही तरीके से करना है। ठीक है। एंड व्हेन वी कम टू पैजेंट्री, पहले हम पैजेंट्री की बात करेंगे। स्टेज पे जब आप हो तो आपको एक बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेट बैक स्ट्रेट करके आपको खड़ा रहना है, हेड अप। ठीक है, ना नीचे देखना है, ना साइड में देखना है, ना आई कांटेक्ट ब्रेक करना है। आपको आई कांटेक्ट बना के एक हम्बल स्माइल के साथ, हाथ सामने रख के या हाथ को पीछे रख के आपको खड़े रहना है। पॉकेट में हाथ नहीं रखना है, नॉर्मली सिंपली खड़े रहना है। ये नहीं सोचना है कि मैं तो विनर हूँ, या आई एम द मोस्ट हैंडसम, आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग, है ना, या फिर मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो जवाब दे दूंगा। वो सारी चीजें क्या है, आपके एक्सप्रेशन पे दिख जाती है। ठीक है, आपको लग रहा होता है कि आई कैन हाइड, यू आर अ वेरी गुड एक्टर, बट एक्टिंग अगर इतनी इजी होती तो हम सब अभी बॉलीवुड में ही होते। हम सब यहाँ एक मास्टर क्लास नहीं कर रहे होते मॉडलिंग और पैजेंट्री के। और जजेस, वहाँ हजारों लोग बैठे होते हैं, सबको दिख जाता है, पास वालों को, दूर वालों को, कि अरे ये तो कुछ सोच रहा है, या ये कुछ गलत कर रहा है, या इनका माइंडसेट अच्छा नहीं है, या इनकी पर्सनालिटी से वो रॉन्ग वाइब आ रही है। एंड जजेस तो बैठे ही हैं, शायद कोई और आंसर दे रहा होगा उस टाइम पे, but at that time बाकी other judges are obviously looking at you, they are looking at everybody, क्योंकि when you are even communicating the question answer round, वो लोग सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं देख रहे होते। ठीक है, आपने सोचा आप तो वॉक कर लिया, इंटरव्यू राउंड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, बट वो सारी चीजें वो लोग ऑन स्टेज भी मैटर करता है। ऑन स्टेज भी वो लोग वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जजेस। तो हर एक चीज पे आपको, यू कैन नॉट बी अ लूज कैन, आपको टाइट रहना है उस टाइम पे। यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ एज इफ यू आर मिस्टर इंडिया ऑलरेडी। ठीक है, नॉट इन एरोगेंस बट इन कॉन्फिडेंस। तो फर्स्ट थिंग इज आपकी पोस्चर एंड पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपका प्रेजेंटेशन स्टेज पे आंसर देते हुए कैसा रहेगा। ठीक है। द सेकंड थिंग इज, कोई भी जज जब आपसे सवाल पूछे तो आपको उनका सवाल खत्म होने देना है। ठीक है, उन्होंने पूछा कि रिसेंट में बहुत सारी वॉर हो रही है, तो आपने फट से दे दिया आंसर कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए, मुझे आंसर आता है। ठीक है, कि अब फिर आपने बोलना चालू कर दिया कि वॉर तो बहुत गलत है, या वॉर तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपने ब्ला ब्ला ब्ला, आपने 1 1.5 5 मिनट तक आप जवाब दिए जा रहे हैं, ना जज का आंसर खत्म हुआ, ना आपने आंसर सुना, और बस गेम खत्म हो गई। तो ये बहुत लोग कर देते हैं, मैंने खुद देखा है इंटरव्यूज, मेरे भी कंपटीशन में, बाकी जगह भी कुछ वीडियोस भी देखे हैं। तो आपको जज को बोलने देना है। जब जज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आपको एक हल्की सी स्माइल देनी है, और आप दो चीज बोल सकते हो, या तो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन सर और मैम, या तो इट्स सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर। ये दो चीज आपको बोलना ही बोलना है, दोनों में से कोई एक चीज बोलनी है आंसर देने से पहले।
ठीक है, एंड इट डिपेंड्स आप कौन से कंपटीशन में हो, सबके रूल्स अलग होते हैं। आपको मैक्सिमम 30 to 45 सेकेंड्स मिलते हैं आंसर देने के लिए। तो उतने देर में ही आपको, आप कितने लाइन बोल सकते हो? मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस। 3 सेंटेंसेस में आपको एक लंबे चौड़े कंट्रोवर्शियल पर्सनल ग्लोबल क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इट कैन बी अबाउट योर सेल्फ, इट कैन बी अबाउट द वर्ल्ड, इट कैन बी एनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कुछ भी हो सकता है। 3 सेंटेंस में आपको जवाब देना है। इसलिए मैंने बोला अगर आप आज चालू करेंगे तो आप शायद कंपटीशन तक या उसके 2-3 साल बाद तक आप उसमें मास्टरी करेंगे कि कम शब्दों में ज्यादा बातें हम कैसे बोल सकते हैं। किसी ने आपको सवाल पूछा, इस दुनिया में भी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? तो आपने लंबी चौड़ी थीसिस बोल दी स्टेज पे कि रशिया का प्रेसिडेंट ये है, यूक्रेन का ये है, पहले ये हुआ था 100 साल पहले, XYZ करते करते आप चले गए। उनको तो वो चीज चाहिए ही नहीं ना, उनको तो फैक्ट्स भी नहीं चाहिए। उनको खाली आपका माइंडसेट देखना है कि आप सोचते क्या है। तो 3 सेंटेंस वो बोलना बहुत ईजी है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता है। लोग बोलना चालू करते हैं, फिर लोग खत्म नहीं होते, फिर बहुत लोग बोल ही नहीं पाते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर का क्वेश्चन है तो आपको यही बोलना है कि आई थिंक कि वॉर इज एन अननेसेसरी इविल, वॉर इज एन अननेसेसरी इविल पीपल। और ये क्या है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। तो सेकंड सेंटेंस क्या होगा? एंड आई बिलीव दैट पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, some people are aggressive, some people are kind, so it is their take on this, but I believe that we should carry out all our activities with peace and harmony and live with each other and spread the message of love all around the world. बस जजेस को इतना ही सुनना है, स्वीट सिंपल शॉर्ट। बहुत बहुत बार, क्योंकि क्या होता है, 10 कंटेस्टेंट्स है, 10 फाइनलिस्ट है, उनमें से 3 विनर हो गया, 5 विनर हो गए, ना 4-5 जजेस बैठे हुए, कभी कभी 10 भी होते हैं। उसमें से आप क्या बोल रहे हो ये चीज हर एक जजेस एक एक पॉइंट नोट नहीं करता, लेकिन आप किस तरीके से बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। एंड एंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, स्टार्टिंग और मिड से ज्यादा, कि आप एंड लाइन क्या बोल के खत्म करोगे, कि सबसे ज्यादा तालियां उसी चीज पे बजती है, सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन उसी चीज पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, when Miss Manushi Chillar was on Miss World stage 2017, तब उनसे उनके फाइनल सवाल उनसे पूछा गया था कि विच प्रोफेशन डिजर्व्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो एक बहुत फैक्चुअल, बहुत एक्चुअल आंसर दे सकते थे कि नो, डॉक्टर, इंजीनियर और एनीबडी एल्स। बट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत काइंड, बहुत वार्म तरीके से बोला क्या, कि द प्रोफेशन दैट डिजर्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इज द प्रोफेशन ऑफ अ मदर। ठीक है, तो टेक्निकली दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, बट लोग क्या है, आप वर्ल्ड स्टेज पे हो, है ना, एंड ये सब जगह ना, आप क्या बोल रहे हो उतना मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली आपको सही चीज बोलनी है, टेक्निकली सही नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इमोशनली ये चीज इतना कनेक्ट करी थी लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में, कि इवेंचुअली शी वन इट। एंड उन्होंने फिर कंटिन्यू किया अपना आंसर कि द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनीथिंग, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कैश और एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी वैसे करके, बट इट इज द केयर, रिस्पेक्ट एंड लव यू गिव टू एनीबडी। एंड वो सबसे ज्यादा एक माँ डिजर्व करती है। तो ऑब्वियसली इट इज अ विनिंग आंसर। सो आपको ये सब चीजें, क्या है, ये सब अलग अलग फॉर्मूला होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। कोई भी विनर का अगर आप आंसर देखेंगे, ठीक है, वो सब में यही सारे जो पैटर्न्स है वो छुपे हुए होते हैं। तो ये जिस दिन आप पैटर्न रिकॉग्निशन करना सीख जाएंगे, इट विल बी वेरी सिंपल, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर आप ब्लैंक रहेंगे ना, क्वेश्चन आंसर राउंड है, हाँ हाँ आने दो, आई एम एन ओपन बुक, हो जाएगा। फिर आप सोचते रह जाओगे द बेस्ट प्रोफेशन XYZ, फिर वहां गुड़ गोबर हो जाता है। जजेस को भी वो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज यू हैव टू बी कनिंग, यू हैव टू बी फास्ट। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके वेट करने का या सोचने का, वेट कर रहे हैं। कोई आपके लिए वेट नहीं करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन से ही कॉन्फिडेंस आता है। आई गिव यू गाइस अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड मोस्टली वही क्वेश्चंस नेशनल पैजेंट में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल,
ब्यूटी पेजेंट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी कि डू यू थिंक ब्यूटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स, ठीक है, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या फिर लीडरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोगों को इंस्पायर कैसे करेंगे, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन है यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लो अपने तरीके से, रट्टा नहीं मारना है, अगर आप इन चीजों को प्रिपेयर कर लो अपने तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ना नेसेसरीली व्हाट इज लीडरशिप या डिफाइन लीडरशिप नहीं आएगा, क्वेश्चन जजेस अपने तरीके से घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप एक सेट ऑफ थिंकिंग अगर आप प्रिपेयर कर लो ना, तो फिर आप ऑन स्टेज उसको फिर थोड़ा सोच के आप उसको आंसर कर सकते हो। पर वहां पे भी आपको सोचना नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिलते हैं? जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्प होता है, कि क्वेश्चन आया और जवाब दे दिया। अब वो जवाब आपने रट्टा मारा था, आपने ऑन स्पॉट इतना फ्लुएंटली बोला, वो तो कोई जज करने आएगा नहीं। जज क्या करेगा कि आपने कितनी जल्दी जवाब दिया। सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है, ये वहां सोचने का तो टाइम रहता नहीं है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा पॉस्चर, हमने डिस्कस कर लिया हमारा तरीका कि जवाब के पहले और एंड में क्या देना है। एंड में जवाब खत्म होते ही हमें बोलना है थैंक यू विद अ स्माइल। 3 सेंटेंस से ज्यादा हमारा जवाब होगा नहीं, लास्ट में थैंक यू, स्टार्टिंग में थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, लास्ट में फिर से थैंक यू, फिर खत्म। एंड देन ऑल्सो बहुत सारी बहुत छोटी चीज है ये, क्या होता है आपको जज क्वेश्चन पूछता है, या आपके बगल में जो कोई कमेंटेटर या कोई ट्रांसलेटर होता है वो आपको सवाल पूछता है कि जज का ये सवाल है, या फिर आपका सवाल इनसे आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बार ना वो माइक पकड़े हुए रहते हैं एंड वो माइक आपकी तरफ करते हैं। अगर वो माइक पकड़े हुए हैं, आपको उनको भी देखना है, आपके राइट में लेफ्ट में खड़े रहेंगे। अगर वो आपको माइक दे रहे हैं तो आपको माइक बहुत जेंटली लेना है। अगर वो माइक दे के खड़े हुए हैं ना थोड़े दूर से, तो आपको थोड़ा सा बेंड होके, थोड़ा सा झुक के आपको फिर जवाब देना है माइक में। बहुत लोग क्या करते हैं, वो माइक पकड़ के खड़े हुए हैं, बहुत लोग जबरदस्ती माइक को टानते हैं, आपका 50% मार्क्स वहीं कट हो जाता है, क्योंकि दैट डज नॉट लुक लाइक अ वेरी जेंटल बिहेवियर, वेरी प्रोफेशनल बिहेवियर ना। अरे तो आप एक आज है ना प्रोफेशनल आना। मीटिंग या सेटअप में ऐसे दिखने बिहेव दो तो ना नहीं क्या हो करोगे। रहा है, उनका शो ठीक है, होगा। ये हो सकता है कि ना आपको शायद से पता नहीं होगा, नहीं गलती से भी बहुत लोगों से होता है जो ये कि बात है इतने वो लोगों के बात सामने थोड़ा नर्वस, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन रहता है, बहुत लोग उतना नहीं रख पाते, लेकिन जजेस यही वो चीज है नोटिस उनके पास, करते हैं बस वो बड़े हैं। कि इतने बड़े हाँ वो सिचुएशन बात में, आना इतने नहीं नर्वस था सिचुएशन में बड़ा किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ नहीं रहा। कितना शार्प है, और कौन कितना मैं निकल रहा हूँ। शांति से और काम मैनर में बाय बैठ बाय, सकता है। अब नेक्स्ट शो में मिलेंगे, नेक्स्ट शो में गाइस, सीधा। किसका माइक नहीं तो मैं आता अनम्यूट हूँ हुआ रात है? को, मैं कॉल करूँगा अंदर ले। राज जाधव, हाँ could you बिल्कुल please बिल्कुल, फिर अपन चलो तो mute yourself? आपको नहीं पता था कि नहीं आया यहाँ पे रहने के Jimmy, can we ask them to remove them and then they can join again? चलो मैं निकल रहा हूँ। हाँ Mr. Raj Jadhav, your mic is unmute. Please mute it. It's creating a disturbance over here. He's not listening. He's not present. No problem. We just continue and we'll hear him as well. कि उनके साइड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारा पोस्चर हो गया, हमारे आंसर का स्टार्टिंग हो गया, हमारे आंसर का एंड हो गया। आंसर देते वक्त क्या एक्शंस का हमें ध्यान रखना है वो हो गया, कि माइक फट से नहीं टान लेना, या फिर बहुत ज्यादा बेंड होके बात नहीं करना। वो ऑब्वियसली आप माइक आपके फेस की तरफ लाएंगे तो आपको जवाब देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप बेंड हो जाओगे तो लगेगा क्या आप एक्टिंग कर रहे हो हम्बल होने की। एक्टिंग भी नहीं करना, अगर आपने एक्टिंग किया, इफ यू आर नॉट योर सेल्फ, या फिर अगर ऐसा दिख गया कि अरे तो एक्ट कर रहा है, तो गेम आप भी खराब हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोफोर्मा। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई चीज ऑब्जर्व की, कोई चीज, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट दिमाग में है, गाइस कैन आस्क। Anshuman is asking, can you repeat this whole part from starting? Which one?
You want me to repeat? चलो लिख लो मैं। Mic actions. Okay, and you also asked another question, just a curious question. Like hand gestures. Hand gestures. सामने Exactly. एयर ड्रॉप बाकी है तुम्हारा। अगले साल ना फिर अपन मिलेंगे नागपुर में, लेकिन ऐसा अभी 12 तारीख लिखा है ना उसमें। 12 तारीख Okay, तो first question 12 तारीख regarding the hand बात तो gestures. सही है। तारीख नहीं If लिखा है, दूसरी बात we तो if we talk about the hand gestures, कोई भी hand gestures नहीं करना है स्टेज पे, प्रज्वल भाई बिकॉज बात आई की हो टोल्ड तो आपके थोड़ा। हाथ या तो पीछे रहेंगे या तो आगे रहेंगे, पॉकेट में नहीं डाल सकते बिकॉज वो एरोगेंट लगता है। ठीक है, एंड साढ़े 9 का ट्रेन मैंने भी निकाल लिया कि सोचा कि नाइट लेट हो जाएगा, 1 बज जाएगा। माझी बाई किती पण सांगते त्या हॉटेलकडे बसूच चाललो माझ्या गाडीवर। टू व्हीलर नाही आला, कुठून आला? घरी आलो, घरी अमरावतीला, ते नागपूरला असतो। रिगार्डिंग द हैंड हा, जेस्टर्स, करून इकडे आलो। आपके हाथ या तो पीछे रहेंगे या तो आगे रहेंगे। ठीक है, कोई भी हैंड मूवमेंट ऐसे 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 ये सब नहीं करना है। इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल। ठीक है, उससे क्या दिखता है कि आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एज आई सेड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर। अगर आप ज्यादा हाथ वाथ दिखाओगे लगेगा क्या कि आप बन रहे हो, आप बनने की कोशिश कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, एरोगेंट लग रहे हो। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, आपका हाथ कंट्रोल में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एज अ मिस्टर इंडिया, एज अ रोल मॉडल, कि आप सेल्फ कंट्रोल में हो, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। एंड यू ऑल्सो आस्क्ड मी टू रिपीट द होल माइक वाला पार्ट ना। ठीक है, सो व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, जब जज ने आपको सवाल पूछ लिया या ट्रांसलेटर ने आपको सवाल पूछ लिया, उसके बाद में दे विल एक्सटेंड द माइक टुवर्ड्स यू ऐसे। ठीक है, उस टाइम पे आपको माइक को टांगना नहीं है या आपको माइक को चलो भाई, फटाक से पकड़ना नहीं मिलते है। हैं, कब मिलेंगे? आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे उनको देखना है कि हाँ वो ऑनलाइन माइक में दे रहिए, रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्प रखना है उस टाइम पे। ठीक है, और फिर यू हैव टू सी, अगर वो माइक दे रहे हैं तो आपको जेंटली ले लेना है, अगर वो माइक नहीं दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ हल्का सा बेंड करके फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, हेलो हेलो। यस यस दिनेश। सर ये बीच में कोई बोल रहा है जो थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही है क्लास में। हम्म तो आप एक बार टीम मेंबर से बोले ना सर, कि बीच में जो भी बोल रहे हैं उनको म्यूट करवावे। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल बी बैक गाइस, जस्ट अ सेकंड। तो क्लास में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी आवाज भी आ रही है। वो सकता है जो भी है बंदा, मतलब एटलीस्ट वो हम्म सकता है कहीं बाहर है तो अपने दोस्तों के साथ ही मीटिंग कर रहा है, तो मतलब हम्म मतलब क्लास ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा वो पता नहीं, लेकिन वो म्यूट हम्म नहीं कर रखा है उसमें। उसमें 3-4 जनों की आवाज एक साथ आ रही है। I'll look into it. Just a second. Give me a second. I'll be back. Guys, is there any disturbance right now? अभी कोई आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है। So you guys want me to repeat the mic वाला part फिर से? I think we are good. Okay, I'll just recap what I told. Whenever you are asked a question, first thing is you have to say thank you so much for the question, sir or ma'am. You can either say this, and the second thing that you can say,
is that was an amazing question or a lovely question. I would love to answer it. फिर आपको जवाब देना है, फिर आपको जवाब देना है अपना, ठीक है, एंड देन थैंक यू बोल के आंसर एंड करना है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। एंड थर्ड थिंग रिगार्डिंग द माइक, अगर आपको जज सवाल पूछ रहा है या फिर ट्रांसलेटर आपको सवाल पूछ रहा है, उस टाइम पे आपको उनको देखना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ये नहीं कि आप उनको ऐसे घूर के देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, साइड आई से देखना है, ऐसे आसपास देखना है, साइड आई से देखना है। अच्छा, सवाल भी सुनना है कि ये मुझे माइक मेरे तरफ, मेरे फेस की तरफ ला रहे हैं या ये मुझे माइक दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको शार्प और कनिंग होना पड़ेगा, ठीक है। पहले के कंटेस्टेंट्स को भी आप देख सकते हैं कि अगर पहले किसी को माइक दिया या फिर ट्रांसलेटर खुद ही माइक पकड़ के माइक के साथ चल के जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो आप कर लेंगे तो वो क्या है, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। तो अगर वो आपके फेस की तरफ माइक लाके खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको दिया नहीं है नीचे, तो आप खाली हल्का सा बेंड होके अपना फेस माइक की तरफ ले जाके फिर आप आंसर करेंगे। अगर वो आपको माइक दे रहे हैं तो फिर आपको माइक को वेरी जेंटली ले लेना है, वेरी स्लोली। ये सारी चीजें क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। अगर आप फट से माइक ले लेंगे, क्या लगेगा, अरे ही इज इन अ हरी, ठीक है, ये खुद के कंट्रोल में नहीं है, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई थिंक और कोई डाउट नहीं है, विल जस्ट मूव टुवर्ड्स the 15 most important questions. You guys can note these questions. First thing is, since we guys are in a beauty pageant, first thing is, do you think beauty is everything? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। Yeah, I'm reciting the questions right now. First question is, Dinesh, if you can hear me, first question is, how do you define beauty? और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि is beauty everything, या फिर what do you think of beauty, ठीक है। तो उसका आंसर आपको कैसे देना है कि टू मी ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस कंबाइंड विथ काइंडनेस, इस टाइप का आंसर मिला जुला के। अंशुमन रावत, योर माइक इज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। सो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, बहुत क्लीशे आंसर नहीं देना है, बिकॉज इट इज अबाउट ब्यूटी। तो अगर आप कोई क्लीशे आंसर देंगे ना कि ब्यूटी रिसाइड्स इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, या फिर ब्यूटी इज समथिंग दैट लाइज विद इन, ये सारी जो क्लीशे और ये ना थोड़ा पुराना हो गया ये आंसर। तो आप क्या बोल सकते हैं, यू कैन से समथिंग लाइक, टू मी ब्यूटी इज कॉन्फिडेंस कंबाइंड विद काइंडनेस, ठीक है। या फिर ब्यूटी इज इन जस्ट अपीयरेंस, इट्स एक्शंस विद अ गुड हार्ट, ठीक है। मैं आपको ये दो तीन सेंटेंसेस दे देता हूँ हर एक क्वेश्चन को लेके, तो उसके इर्द गिर्द आप अपना सवाल और जवाब बना सकते हैं कि अगर इसका ऐसा क्वेश्चन आया ब्यूटी को लेके तो मैं ये जवाब दूंगा, ये क्वेश्चन आया तो मैं ये जवाब दूंगा। क्वेश्चन भी दो तीन तरीके से घुमा के आ सकता है, आंसर भी आपको उसी हिसाब से देना है, ठीक है। आपने प्रिपेयर तो कर लिया, आपने प्रिपेयर किया कि व्हाट इज ब्यूटी, और आप जवाब दे रहे हैं कि इज ब्यूटी इंपॉर्टेंट और योर कॉन्फिडेंस, आप एक्स का जवाब वाई में दे रहे हैं, तो जजेस भी समझ जाएंगे ऑब्वियसली दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। मैंने बोला कि हाउ यू मैटर, हाउ यू से मैटर्स, व्हाट यू से डज नॉट मैटर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर रोल मॉडल एंड व्हाई। इसका बहुत सिंपल जवाब होगा, whoever is your role model in the pageantry world, most probably। अगर अगर आप पेजेंट्री को लेके अगर अपना जवाब दें, इट विल बी बेटर। बट अगर आप चाहते हैं कि आप कोई स्पोर्ट्स आइकन या कोई बॉलीवुड स्टार या किसी का आप अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट पेजेंट्री का लेंगे तो क्या है, बिकॉज इट इज हम पेजेंट्री एंड मॉडलिंग कॉन्टेस्ट, सारे हम एक ही इंडस्ट्री के लोग आते हैं, दे विल बी एबल टू रिलेट, है ना। किसी अगर कोई और का भी वो रोल मॉडल है किसी जज का, अगर वो जज किसी उसके फ्रेंड है, तो क्या है, वो एक कमराडरी बन जाता है एंड वो अच्छा लगता है, वो एक रिलेशन बन जाता है ऑन स्टेज, ठीक है। सो जब मुझे पूछा था, आई टोल्ड अबाउट मिस्टर रोहित खंडेलवाल बिकॉज ही जनरली माई इंस्पिरेशन, आई नो पेजेंट्री एंड मॉडलिंग वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोला था। इसका आंसर बहुत सिंपल हो सकता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, आई विल हैव टू आंसर इट। माय रोल मॉडल हैज ऑलवेज बीन मिस्टर रोहित खंडेलवाल। व्हाई? बिकॉज of his impeccable performance on the Mr. India and Mr. World stage.
and he has made the whole country proud. And I would like to follow his footsteps and bring glory to our country. A very simple, short, and sweet answer. लास्ट में थैंक यू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दोनों में किसी को कुछ डाउट है? कभी कभी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, होते होंगे क्या? नो, आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. आप इन सबको नोट डाउन कर लो. मोस्टली इन्हीं सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. बेसिक प्रोफोर्मा होता है स्टेज पे पूछने का क्वेश्चन. सालों से यही चलता आ रहा है. और डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आंसर करने का ना तरीका होता है दिनेश. हर एक क्वेश्चन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है कि जजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप क्या बोल सकते हो स्टेज पे. कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप स्टेज पे नहीं बोल सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू विन. अगर आप जीतना चाहते हैं देन यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन क्राइटेरिया एंड स्ट्रक्चर. एक तरीके से एक रोल मॉडल और एक सेट ऑफ रूल्स के साथ आपको चलना पड़ेगा. इफ यू डोंट वांट टू विन, इफ यू जस्ट वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि हाँ आई एम लाइक दिस, मैं ये सोचता हूँ, मैं अगर किसी चीज को हेट करता हूँ तो करता हूँ, लव करता हूँ तो करता हूँ, यू कैन गो हेड विद दैट एज वेल. ठीक है. एंड क्वेश्चंस टफ नहीं होते, आप अनप्रिपेयर्ड होते हो. क्वेश्चंस टफ नहीं होते, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीडरशिप क्वालिटी डू यू एडमायर मोस्ट. अब इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन लीडरशिप. इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द वन लीडर, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल, हु यू एडमायर द मोस्ट. ठीक है. तो लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन लीडरशिप दैट आई लाइक और दैट आई एडमायर इज एम्पैथी और कंपैशन और टीम वर्क और बोल्डनेस. कुछ भी एक एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, फिर आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि आई फील दैट एम्पैथी या फिर आई बिलीव टीम वर्क. व्हाई? बिकॉज बिफोर बिकमिंग अ लीडर यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर. तो आप ये जवाब दे सकते हैं. ठीक है. या फिर अगर आपके मन में और कोई एडजेक्टिव है उसका आप अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं. 2 सेंटेंस में ये हो गया. उसके बाद में थैंक यू. शॉर्ट स्वीट सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर. हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर. सो ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल सवाल है. आप बोल सकते हैं कि आई हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर, आई एक्सप्रेस माई स्ट्रेस और प्रेशर while playing a guitar or while dancing or while playing sports or when I work out or when I sleep. ये कि मैं सो के भूल जाता हूँ. ठीक है. फनी सा आंसर आप दे सकते हैं कि मैं जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाऊँ मैं सो जाता हूँ, मैं कुछ सोचता ही नहीं. जैसे भी बोलेंगे अरे सच ऑथेंटिक सच रियल सेल्फ. ठीक है. इधर रियल होने में बहुत सेफ्टी है कि हाँ मैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होता हूँ मैं सो जाता हूँ. ठीक है. नॉट अ वेरी ब्रेव आंसर, नॉट अ वेरी इंस्पायरिंग आंसर, बट ठीक है, ऑथेंटिक एंड रियल. सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप अपने आंसर में ला सकते हैं ना इन अ वेरी कनिंग एंड वेरी स्मार्ट मैनर, तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल होता है. क्यों? क्योंकि स्टेज पे सब नर्वस है, सब डरे हुए हैं, अरे क्या होगा क्या होगा, जवाब देना है. सब एकदम होकर बन के खड़े रहते हैं. अगर वहां पे आप बिल्कुल ईज के साथ शांति से कामली अगर आप जवाब देते हो ना, तो वो जजेस को बहुत अच्छा लगता है. वो यही दिखाता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत चार्मिंग है, ये सच अ गुड पर्सनालिटी. वी नीड पीपल लाइक हिम. क्यों? ताकि ये अपने फेलो कंटेस्टेंट्स एंड फ्यूचर एस्पायरिंग मॉडल्स एंड यूथ ऑफ हर कंट्री को भी इंस्पायर कर पाए. कोई भी सिचुएशन हो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. एंड हर एक चीज को अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ निकाल दोगे ना तो लाइफ विल बी रियली इजी. तो उससे ये इम्पैक्ट जाता है लोगों में. ठीक है. सबका अलग अलग आंसर होगा हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है अबाउट योर पर्सनल थिंकिंग. व्हाट सोशल इशू आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट. तो इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं जो करंट, ऑब्वियसली जो करंट सोशल इशू है विच इज वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड फिटिसाइड, या फिर एजुकेशन, या फिर पॉवर्टी, या फिर एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन. आप कुछ भी बोल सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमेशा से है, हमेशा से रहा है,
जो मैंने भी आप लोगों को फर्स्ट थिंग जो बोला था हमारी फर्स्ट क्लास में, दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, आप लोगों को मॉडलिंग में जाना है, पैजेंट्री में जाना है, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ रिगार्डिंग मॉडलिंग एंड पैजेंट्री। सो वही चीज दुनिया में भी एप्लीकेबल होती है कि पैसे सबको कमाने हैं, घर सबको चलाना है, फेम सबको चाहिए, तो उसके लिए एजुकेट करना और अवेयर होना कि क्या काम करूं तो उससे मेरा घर चलेगा, क्या काम करूं तो पैसा आएगा। तो मेरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इशू है। कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट सोशल इशू आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट। मतलब ऐसा कौन सा सोशल टॉपिक है या सोशल या पॉलिटिकल या पब्लिक टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं एंड आप उसको ठीक करना चाहते हैं। तो चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, है ना, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द होल वर्ल्ड, ओजोन लेयर में एक होल हो चुका है, ये सारी चीजें हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू विनर्स आंसर, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। आप कुछ और भी बोल सकते हैं। मान लो कल को स्टेज पे किसी आपके पहले वाले कंटेस्टेंट को किसी ने पूछ लिया ये सेम क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट पैशनेट सोशल टॉपिक दैट यू थिंक अबाउट, उसने बोल दिया एजुकेशन। तो अगर आप रिपीट करेंगे तो ये लग जाएगा कि यार ये तो पिछले वाले का कॉपी किया है। तो आप वहां पे आपको एक ऑल्टरनेट आंसर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप रट्टा मत मारना, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। आप चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बोल देना, आप एजुकेशन इन जनरल के बारे में बोल देना, अवेयरनेस के बारे में बोल देना, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल देना, ना कि औरतों को भी उतना इक्वल राइट्स एंड सब कुछ देना चाहिए कि ना औरतें किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं, इक्वालिटी सबका राइट है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन शॉर्ट में, 3 सेंटेंस में। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ यू विन दिस टाइटल व्हाट विल यू डू। मतलब जीतने के बाद आप क्या करेंगे। बहुतों के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों का विजन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है कि आज का तो हो जाएगा, कल का कल देखेंगे ना, या फिर आज तो ये कंपटीशन है, कल का तो कल देख लेंगे, कल का परसों देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन वो क्या है, वो विजन अगर आप एज ए लूज कैनन जजेस को बोलेंगे ना कि यार मैं तो खाली कंपटीशन जीतने आया हूँ, उसके बाद क्या होगा मैं देखूंगा, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे लेके जाना है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये जीतने के बाद आप शाम को क्या करेंगे, आप कल क्या करेंगे, तो तब तो इट इज अ वेस्ट ना। हम उसको जिताए ना जिसको पता है कि इस टाइटल का यूज कैसे करना है। जीत के आप घर पे बैठ जाओगे, हाँ भाई मैं तो जीता, वो चीज जजेस को ना बहुत खराब लग जाती है। तो आपको यही चीज पोर्ट्रे करना है। लाइक आई कैन गिव यू माई आंसर। जो जवाब मैंने दिया था, मुझे ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट विल यू डू आफ्टर विनिंग, मुझे मेरे फाइनल इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था। सो आई टोल्ड कि आफ्टर विनिंग दिस पैजेंट आई विल नो लॉन्गर express myself as a model, but as a role model. And I would inspire the youth of our country to dream as big as possible and work as hard as possible because nothing is impossible to achieve. मैंने ये जवाब दिया था कि जीतने के बाद आप क्या करेंगे। मैं ये करूंगा, आई इंस्पायर पीपल कि मेहनत करिए ऐसे वैसे। इस टाइप का जवाब मैंने दिया था। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट विल यू डू आफ्टर विनिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एक बिजनेस करूंगा, मैं एक एनजीओ खोलूंगा। सबका अलग अलग होता है। कल को आप बोलो कि मैं सर आज मैं पैजेंट जीत जाऊंगा, मैं ये टाइटल जीत जाऊंगा, फिर कल मैं सीधा बॉम्बे शिफ्ट होकर बॉलीवुड जाऊंगा, आप बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दे आर जस्ट आस्किंग फॉर एन आंसर। वो सच है, वो झूठ है, वो क्या है, वो तो कोई जानने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ माइंडफुल, कुछ लॉजिकल सेंसिबल जवाब आपको देना है। कल को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो पैजेंट जीत के मैं तो रिटायर, मैं मॉडलिंग नहीं करूंगा, अब मैं फैमिली बिजनेस। उसका बोलने का भी ना तरीका होता है। ठीक है, आप रिटायर कर जाओ मॉडलिंग से, आपको और मॉडलिंग नहीं करना, आप खाली पैशन के लिए कर रहे थे, मिस्टर इंडिया जीत गए, हो गया। लेकिन अगर आपको बोलना है तो आपको क्या बोलना है कि मैं ये पैजेंट जीतने के बाद अपनी वॉइस को यूज करूंगा ताकि मेरे फैमिली का जो बिजनेस है मैं उसको और एक्सपैंड कर पाऊँ। मुझे जो नेटवर्क और जो फेम मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, इस पैजेंट से, इस टाइटल से, मैं उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फैमिली, माई सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द सोसाइटी। बिकॉज बिजनेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली खुद के पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं,
हम कुछ सर्विस या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडियंस को या कस्टमर को, तो हम वो उनको प्रोवाइड करेंगे, मुझे एक लार्जर ऑडियंस मिलेगी, मैं उनको वो सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर करूंगा, तो उनका भी फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वाटर का बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं अगर वॉचेस का बिजनेस कर रहा हूँ, या कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ, तो उससे उतने लोगों को भी फायदा होगा ना जिनको पानी पीना है, या जिनके पास कपड़े नहीं है, उनको मैं कपड़े प्रोवाइड करूंगा चीपर रेट्स पे। क्यों? क्योंकि मुझे अगर ऑडियंस मिलेगी, मेरा धंधा बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो मैं कम रेट पे भी लोगों को कपड़े ऑफर कर सकता हूँ, ताकि जिनके पास कपड़े नहीं है मैं उनको पहनने दे सकूँ। इस तरीके से आपको जवाब को घुमा के बोलना पड़ेगा। लेकिन इसको मैंने तो बोल दिया 10 सेंटेंस में, आपको बोलना है 3 सेंटेंस में, दैट यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कैसे बोलना है। तो सबको समझ आ गया? इफ यू विन दिस टाइटल व्हाट विल यू डू? आई होप दिस इज क्लियर। इसने कुछ पूछा था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा था। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने बोला था माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आई एम अ फास्ट लर्नर। मैं कोई भी चीज जल्दी सीख जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ क्यूरियस सोल। मुझे चीजों के बारे में सीखना, पढ़ना, समझना बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? बिगेस्ट वीकनेस मैंने बोला था कि आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर। मैं एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता हूँ। मैं 10 चीजें, मेरे 10 हाथ नहीं है, या मेरा दिमाग उतना शार्प नहीं है, या मैं उतना फास्ट नहीं हूँ, या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं 10 चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। या फिर आई कैन नॉट टेक प्रेशर, आप ये भी बोल सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट यू हैव टू बी ऑथेंटिक एंड क्रिएटिव। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है। When I told in the first class कि you have to educate and aware yourself, एजुकेशन तो आप इंडस्ट्री के बारे में करोगे, अवेयरनेस तो आपको अपने बारे में होगा ना। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। अवेयर अवेयर आदमी दुनिया के बारे में नहीं होता, अवेयर आदमी अपने बारे में पहले होता है, फिर दुनिया के बारे में होता है। कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, अच्छा वो वैसे, मैं ऐसा हूँ तो ये चीज ऐसे चलती है, अच्छा एक्स ऐसी है, वाई ऐसी है, जेड चीज ऐसी चलती है, वो चीज है। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटेस्ट वीकनेस आपको समझ आ गया है, गेस। बहुत ही पर्सनल चीज होती है ये। जजेस ये पूछ के ना आपको परखना चाहते हैं कि आप खुद को कितना जानते हैं, अवेयरनेस। तो जो मैं फॉर्मूला और पैटर्न की बात कर रहा था, सबसे फर्स्ट थिंग आती है अवेयरनेस, फिर सेकंड में आता है आपका प्रेजेंस, थर्ड में आता है आपका शार्प माइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सफलता आपके लिए क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप सब अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं। मैंने ये बोला था, व्हेन एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड लव्स मी alive, then I think I will be the most successful person, and I think that is success for me. कुछ लोग बोलते हैं कि when my parents are the most happiest with me, या when my parents say that they are proud of me, I think that is success for me. बहुत लोग मनी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, बट आई डोंट थिंक ऑन अ नेशनल स्टेज वो अच्छा लगता है। बट ठीक है, इफ यू आर रॉ एंड ऑथेंटिक, देन इट वर्क्स। ठीक है, आप जीतेंगे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बिकॉज व्हेन यू से एंड टॉक अबाउट मनी, तो वो ना बहुत मनी माइंडेड लगता है कि ये तो सिर्फ पैसे कमाता है। बिकॉज व्हेन यू आर अ मनी माइंडेड पर्सन, यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, एंड बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। बिजनेसमैन काइंडनेस, लव, केयर, सोसाइटी, दूसरों के बारे में बाद में सोचता है बाद में, अपने बारे में पहले सोचता है। तो अगर आप स्टेज पे मनी के बारे में बात करोगे, तो ये इम्प्लीकेशन जाएगा। इसलिए आप फेम के बारे में बात करिए, आप लव के बारे में बात करिए, आप फैमिली के बारे में बात करिए, आप खुद की कोई सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करिए। हाउ डू डिफाइन सक्सेस? आई डिफाइन सक्सेस लाइक दिस। बहुत लोग बहुत सोसाइटल हो जाते हैं कि सक्सेस, आई विल अचीव सक्सेस व्हेन आई थिंक दैट आई हैव डन समथिंग गुड टू द सोसाइटी, या फिर मैं किसी एक बंदे को इंस्पायर कर पाया ये टाइटल जीतने के बाद। अगर मैं वो कर पाया, देन सक्सेस इज दैट फॉर मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव यंग गर्ल्स एंड बॉयज हु आर वाचिंग यू ऑन दिस स्टेज? इसका इस सवाल के ना 3 से 4 जवाब है, जो मैं आपको बोलना तो कि आप रट्टा मार लो इन पर के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आई वुड सजेस्ट द यंग बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस
to never give up. First thing, first point है never give up. Second point is always believe in yourself. Third point is always stay positive. Fourth point is never compare yourself to others. इसका justification क्या है? Because everybody is different, everybody else is taken, and you have to compete with yourself. You have to be the best version of yourself. And the fifth point is, which is very important, and ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत humble king वाला feeling देता है ये, humbleness दिखाता है स्टेज पे. Never stop learning. कि आप कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, एक्टर, मॉडल, पैजेंट किंग, मिस्टर वर्ल्ड बन जाए, आप मिस्टर यूनिवर्स बन जाए, बट स्टिल प्लीज डोंट स्टॉप टू लर्न. अगर आप ये चीज बोलेंगे ना तो लगेगा यार दिस इज सच ए पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, ये कितना सेंसिबल और कितना अहेड ऑफ हिज टाइम. इवन इफ यू आर 60 years old और इवन इफ यू आर द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नेवर स्टॉपिंग लर्निंग. मतलब क्या? मतलब कि अगर आपके सामने कोई 10 साल का बच्चा भी आ गया, या अगर कोई बिगिनर भी आ गया इस इंडस्ट्री का, और वो अगर आपको कुछ ऐसी चीज दिखा रहा है या बता रहा है या सिखा रहा है जो आपको पहले नहीं पता था, बीइंग द सुपरस्टार और 60 year old एक्सपीरियंस्ड का, तो आप वो भी सीखने के लिए ओपन हो. ये चीज दिखाता है ये आंसर. तो आपको आंसर लिखते वक्त या सोचते वक्त या बोलते वक्त ये भी देखना है कि ये आंसर बोलने से क्या इम्प्लीकेशन जा रहा है. इसलिए मैंने बोला था क्लास के स्टार्टिंग में आज कि रोल रिवर्सल करके देखिए आप. अगर आप खुद की फोटोज खींच रहे हैं एंड फिर उसको खुद ही एक कास्टिंग डायरेक्टर की नजर से देखिए. क्या एज अ मॉडल इज दिस गाय फिट? ओके. इज द पिक्चर गुड? ओके. क्या मैं इसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया एजेंसी के लिए, सीरियल टीवी एड के लिए? क्या उनको पसंद आएगा? नहीं. ठीक है, रिजेक्टेड. आंसर देते वक्त भी आप यही चीज प्रैक्टिस करिए कि क्या ये आंसर देने से मुझे एक अच्छा फीलिंग आ रहा है. व्हेन आई से दिस, एम आई फीलिंग गुड अबाउट दिस? डू आई फील लाइक दिस इज अ विनिंग आंसर? इफ द आंसर इज यस, then you are the winner. If the answer is no, then you improve, then you learn. हमें रिजेक्शन से या कोई रॉन्ग आंसर से या ब्लैंक होने से डरना नहीं है. वी जस्ट हैव टू थिंक कि अच्छा ये आंसर मेरा गलत हो गया या मुझे इसका आंसर नहीं पता, सो आई एम जस्ट वन स्टेप अहेड. थोड़ा सा और सोचूंगा इसका आंसर आ जाएगा. या अगर कोई चीज में एक बार फेल हो गया, या किसी एजेंसी को अगर एक बार मेरे फोटोज भेजे रिजेक्ट हो गया, तो शायद नेक्स्ट टाइम हो जाऊंगा, शायद थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में तो हो ही जाऊंगा. यही सोच के हर दिन, हर तीसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने प्रैक्टिस करते रहना है, लोगों को प्रोफाइल भेजते रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है. बिकॉज दिस इंडस्ट्री टेक्स टाइम. एक महीने में, एक साल में कुछ नहीं होने वाला. ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे, लेकिन जहां आप सोच रहे हो वहां शायद आप नहीं पहुंच पाओ. बहुत लोग पहुंच जाते हैं, वो लोग उतना मेहनत भी करते हैं. बिहाइंड द सीन्स कौन कितनी मेहनत कर रहा है आप लोगों को नहीं पता है. कोई 12 घंटे मेहनत कर रहा है, कोई 24 घंटे कर रहा है, कोई सिर्फ 2 घंटे जिम करके छोड़ दे रहा है, कोई डाइट नहीं कर रहा. दिस इंडस्ट्री टेक्स टाइम. 5 साल, 8 साल, 10 साल आपको मिनिमम देना पड़ेगा टू मेक योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था. द वर्ल्ड इज फेसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मेनी रीजन्स. दुनिया में आजकल वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है. आपका इस बारे में क्या सोचना है? तो ये ना एक बहुत अगर वर्ल्डली पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है जवाब देना. कि दुनिया में दोनों टाइप के लोग हैं. एक जो चाहते हैं वॉर हो, क्योंकि जो वॉर कर रहे हैं वो भी तो बेवकूफ नहीं है, वो भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. कुछ लोग हैं जो लोग वॉर नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं कि शांति से सब कुछ सुलझ जाए. वो लोग भी अपनी जगह ठीक है कि हाँ भाई बात करके कम्युनिकेट करके सब कुछ ठीक कर ले. तो आपको किसी को ऑफेंड नहीं करना है स्टेज पे. आपको ये बोलना है कि आई बिलीव दैट लोगों का अलग अलग थिंकिंग हो सकता है. आई बिलीव दैट वॉर इज एन अननेसेसरी इविल. Some people might say it is good, some might say it is bad, but I think that with love, peace, and harmony, we can solve any problem around the world.
सिंपल, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। आपने ना किसी को ऑफेंड किया, ना आपने किसी को अच्छा बोला ना बुरा बोला, आपने खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, बस। नेक्स्ट वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आर कंट्री या मेनी कंट्रीज सफर विथ एंड स्ट्रगल विथ corruption and lack of transparency? How would you solve this problem, or what do you think about this? इसमें भी आपको यही बोलना है, पहले आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है, फिर आपको एक नॉन बायस स्टेटमेंट बोलना है, फिर आपको उसका सोल्यूशन बोलना है। फर्स्ट थिंग बोलना है कि करप्शन and any such kind of activity and lack of transparency does rot the system. Some people might think it is beneficial for them. Some people believe that it is non-beneficial for the system. And I believe that if we stop this, then our country can progress in an exponential level. मतलब क्या कि मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं है। सेकंड, किसी लोगों के लिए ये अच्छा हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिस्टम के लिए, हमारे देश को या हमारी दुनिया को ये चीज़ खराब कर रही है। और थर्ड स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अगर ये खत्म हो जाए या अगर ये कम हो जाए, तो फिर हमारा देश या हमारी दुनिया या हमारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। तीन स्टेटमेंट में हो गया। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ ग्लोबल पॉलिटिकल इशू। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। ये तो हमें स्कूल और कॉलेज में भी सिखाया गया है। हमें पूछते हैं क्लाइमेट चेंज होता ही रहा है, आगे भी बढ़ते ही जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत वार्म होते जा रहा है। इसके बारे में आपको यही बोलना है कि ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स शुड थिंक अबाउट environmental change rather than economic growth। कि हमारे हमारे देश और सिस्टम और पैसा और मनी, ये सारी और पॉलिटिकल चीज़ों से ज़्यादा हमारे जहाँ हम रह रहे हैं धरती पे, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर देश ही नहीं रहेगा, या फिर अगर आसपास ग्रीनरी नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, दुनिया ही नहीं रहेगी, तो कंट्री तो रह ही नहीं पाएगा ना। दुनिया रहेगी तब ना उसमें कंट्री रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा तब ना उसमें इकोसिस्टम ऑपरेट कर पाएगा। अगर वर्ल्ड ही नहीं बचेगा तो इकोसिस्टम कहाँ से रहेगा? बिकॉज अर्थ इज वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन। धरती हमारी सबकी है। अर्थ इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी हैव, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैट। मैंने ये जवाब दिया था मेरे वन ऑफ द इंटरव्यू के क्वेश्चन में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मुझे पूछा था, तो मैंने एक बहुत अच्छा लाइन सोचा था कि अर्थ इज वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन। धरती हम सबकी है, इसलिए हम सबको इसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी। ये भी कंट्रोवर्शियल टाइप का सवाल है। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात हो रही है जो खुद से इमर्ज होके आई है। खुद उन लोगों की थिंकिंग है कि वो एक सर्टेन तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यही बोलना है कि आई बिलीव दैट LGBTQ कम्युनिटी डिजर्व्स इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल इक्वालिटी। जो हम शेयर करते हैं वही वो लोग भी शेयर करना चाहिए। इट इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन। कुछ लोगों को लगता है कि ये कम्युनिटी सही है, बुरी है, सच है, झूठा है, जो भी है, बट आई बिलीव, फिर आपकी मर्जी। आई बिलीव कि उनको उनका राइट्स देना चाहिए। आई बिलीव इसे अबॉलिश कर देना चाहिए। आपकी मर्जी है, आपको जो भी बोलना है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे ना किसी कम्युनिटी या किसी कंट्री या किसी के भी बारे में कि इन्हें अबॉलिश कर दो, इन्हें खत्म कर दो, इन्हें हटा दो, डाइसेक्ट कर दो, तो अच्छा नहीं लगता है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक पॉजिटिव रिप्लाई दें कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को इग्नोर करिए। किसी और के रिप्रेजेंटेशन से, प्रेजेंटेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम सब यूज करते हैं।
क्वेश्चन कैन बी, इज सोशल मीडिया एन अननेसेसरी इविल, या फिर इज सोशल मीडिया अ टूल ऑफ डेमोक्रेसी और अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। है ना, कि सोशल मीडिया को लोग कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ टूल यूज कर रहे हैं मॉडलिंग और पेजेंट्री सीखने के लिए, या फिर टेररिज्म के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको सिंपल सा जवाब देना है, सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट significant inventions of our century, and I believe that if we use it not just for our personal benefit but also for the good of our society, then we can progress on an exponential level. मतलब सोशल मीडिया हमारी सदी का सबसे बेहतर इन्वेंशंस, आविष्कारों में से एक है, और अगर हम इसे अपने हित की जगह दूसरों के भलाई के लिए भी यूज करें, इस्तेमाल करें, तो सबके लिए अच्छा होगा। And I think we are done for today. आई एम कॉलिंग इट अ डे। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड। उनके अगर आप लोग को भी ये 15 क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन में डाउट है, कहीं आपने सुना या समझा या देखा है सुना, आप लोग पूछ सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए, इफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग दोज यू कैन आस्क। Excuse me, sir. Can I say something? यस प्लीज। Actually, sir, I have listened some questions like generally not the judges, but the mic is given to the common people or the public or something. Either they have something position or holding something like that, but they ask something really general question or related to bit current affairs, maybe something related to fashion industry. So if we are not aware about it, specifically, I saw a reel in which from a gentleman from public questioned the model about what do you think about the Kolhapuri chappal, which happened in a subway Sanchi or something in that part. So like that's something uh, so quick and we are unaware of it. So how to tackle something like that? जस्ट लाइक आई सेड, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं ये सब, पब्लिक अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसमें वही 3 सेंटेंस में जवाब देना है फिर से। फर्स्ट विल बी स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट में क्या, कि यस आई हैव हर्ड अबाउट दिस। अगर वो अच्छी चीज है तो आप बोलो आई फील रियली हैप्पी। अगर वो बुरी चीज हुई है, बोलो आई फील रियली सैड। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस हो सकता है, 2 सेंटेंस हो सकता है कि यस आई हैव हर्ड अबाउट दिस एंड आई फील गुड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, सम पीपल बिलीव इट इज नाइस, सम पीपल बिलीव इट इज बेनिफिशियल फॉर देम, सम पीपल बिलीव दैट इट इज नॉन बेनिफिशियल फॉर द सिस्टम। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस हो गया किसी को लगता है ये अच्छा है, किसी को लगता है ये खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बस। सिंपल है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो उसको बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल जैसे तरीके से जवाब देना है, कि हाँ मैंने सुना है इस बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा। किसी को लगता है ये अच्छा है, किसी को लगता है ये बुरा है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये चीज़ और बेहतर हो सकती है सबके लिए। बस। अगर आपको उस चीज़ के बारे में जवाब नहीं है, तब भी ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन के आंसर के लिए काम करता है, कि हाँ मैंने जो कोल्हापुर इंसिडेंट हुआ, कोल्हापुरी चप्पल का, उसके बारे में सुना, और आई एम अवेयर अबाउट दिस। किसी को लगता है ये चीज़ अच्छी है, किसी को लगता है ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है, बट मुझे लगता है अगर हम इस टॉपिक को छोड़ के दुनिया के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, जस्ट लाइक पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज, देन वी कैन प्रोग्रेस एज अ सोसाइटी। आपने टॉपिक ही शिफ्ट कर दिया। अगर आपको नहीं पता इस टॉपिक के बारे में, हो सकता है हमारे देश में, दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। जो चीज़ टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर टेलीग्राफ में आती है या इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आती है, हमें वही चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है। ठीक है, हमारी लाइफ तो एज ए न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है कि हमें सब कुछ पता हो। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसका जवाब इस तरीके से घुमा के दे देना है। और जो चीज़ पता है, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, यू गाइस हैव टू बी अवेयर, बिकॉज सोशल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है।
ये अभी एक गर्ल जस्ट मर्डर्ड हर फियांसे और हस्बैंड कहाँ पे तो विथ हर बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, एक न्यूज आई थी। फिर रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत नेगेटिव क्वेश्चन भी लोग पूछ सकते हैं अगर पब्लिक को अगर आप माइक दे दो, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। लोग आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पूछ सकते हैं ना। तालिबान में ना कहाँ पे यस्टरडे आई वाज रीडिंग कि वहाँ पे औरतों के सारे राइट्स एंड इक्वालिटीज उनसे छीन लिए गए हैं ना। घर से निकलना, नो एजुकेशन, है ना। घर में घर से निकलना ही नहीं एक्चुअली। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर लाइक 6 बजे के पहले, 4 बजे के पहले घर आना है। राइट्स नहीं है, इक्वालिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। उनके बारे में भी आपको सवाल आ सकते हैं। तो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल वे से किसी को ऑफेंड नहीं करके, क्योंकि ये मेरी नॉन ऑफेंड वाली मैं बात क्यों बोल रहा हूँ कि आज आप लोग एक कंटेस्टेंट हो, कल आप विनर बनोगे, लेकिन 5 साल बाद आपकी ना एक लेगेसी और एक फेम बन जाएगा, एक ऑडियंस बन जाएगी, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। तो अगर उन प्यार करने वालों की थिंकिंग आपसे अगर अलग हुई ना, और आपने अगर उनको फेवर नहीं किया, उनको अगर नीचे बोल दिया कि नहीं आप जो सोच रहे हो खराब है, तो फिर वो आप पे बैकफायर कर जाएंगे कि अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, वैसा कैसे बोल दिया, आपकी फैन फॉलोइंग गिर जाएगी। एज ए पब्लिक पर्सनालिटी हमारी फेम ही हमारे लिए सब कुछ है। कोई हमें जानेगा नहीं तो ना हम पैसा कमा पाएंगे, ना हम काम कर पाएंगे, ना लोग हमारे साथ काम करना चाहेंगे। इसलिए मैं इसलिए मैंने बोला वर्किंग विथ एंड वर्किंग फॉर पीपल। लोगों के साथ काम कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। पब्लिक पर्सनालिटी की लाइफ हमारी खुद की नहीं होती है। इफ आई एम शेयरिंग ऑल द नॉलेज विथ यू गाइस, दैट इज वाई, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे उतना प्यार और इज्जत दें जो चीज़ मैंने ड्रीम किया था 5 साल पहले। अगर मैं आज आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर नहीं करूँ, खुल के नहीं बताऊँ सारी चीज़ें, इनसाइट्स इंडस्ट्री के बारे में जो भी नॉलेज है, या मैं अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूँ और आप लोग को 2 साल बाद पता चले, आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दोगे, शायद ब्लॉक भी कर दो। आप लोग फिर जाके 10 जगह मेरी बुराई करोगे कि नहीं नहीं इनके पास मत जाओ क्योंकि ये बुरे हैं। तो कुछ भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना है। आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, मोस्टली द बॉलीवुड स्टार, द कोई स्पोर्ट्स स्टार, फिर व्हेन रोनाल्डो जस्ट केप्ट असाइड द थम्स अप या कोका कोला का बॉटल, उनके शेयर्स के प्राइस गिर गए थे। तो वट एवर यू डू एज अ पब्लिक फिगर, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसीलिए ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हाँ, वेरी मच्योर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हर किसी को नहीं पूछा जाता है, ये मोस्टली इंटरनेशनल क्वेश्चन में पूछा जाता है, नेशनल में उतना नहीं होता है मोस्टली। लेकिन आपको पर्सनल इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप इसका जवाब इसी तरीके से दे सकते हो कि दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर अबाउट माई लाइफ, और अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माई लाइफ, and I will be slightly heartbroken with this if I get rejected. But I don't feel there is any reason why I should get rejected. But if I do, then I will accept it gracefully and I will work on myself and I will not sit with it. I have other things planned in my life and I will focus on that. ठीक है, तो ये चीज पर्सनल इंटरव्यू की है, इसलिए ये आंसर आपका 6 7 8 सेंटेंसेस 8 10 लाइन का या 1 मिनट का हो सकता है। ये पर्सनल इंटरव्यू जब आप होगा ना, दैट इज वो स्टेज के क्वेश्चन आंसर से बहुत ज्यादा पर्सनल रहता है। दैट इज आपको इन पर्सन जानना चाहते हैं, स्टेज पे तो बहुत बाद में होता है। ठीक है, रिजल्ट्स पहले ही बन जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में ही। पर्सनल इंटरव्यू क्यों? क्योंकि वो आपको पर्सनल जानना चाह रहे हैं। आपको रिजल्ट वही मोस्टली आई वुड से 60% हो जाता है। रेस्ट जो आप फाइनल में परफॉर्म करते हो वो होता है। फिर वो आपको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या आप अगले साल फिर से आएंगे अगर आप इस साल रिजेक्ट हो गए। तो a good answer would be कि हाँ सर, like if you are young, if you are somebody like me who's in the 20 21 22 years old, then you would say कि yes sir, definitely I want to be part of this industry and I think this platform gives me a very big leverage in the future. इस प्लेटफॉर्म से मैं और आगे बढ़ सकता हूँ जो मैं मुझे नॉर्मली नहीं मिलता, तो मैं डेफिनेटली अगले साल फिर से आऊंगा और स्ट्रांग बन के। बट इफ यू आर ऑलरेडी 27 28 30 35 वट एवर योर एज इज, तो आप बोलो नहीं सर, आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस, शायद मैं इस साल उतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन ये चीज यहाँ पे मेरी चैप्टर, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी खत्म नहीं होती, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं,
मैं उन पे फोकस करूंगा, और मैंने यहाँ जो सीखा पिछले 6 महीने में, पिछले 2 महीने में, पिछले 1 साल में इस पैजेंट की जर्नी में, मैं वो चीज अपने बाकी एंडेवर्स में अप्लाई करूंगा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग में जा रहा हूँ, मैं मॉडलिंग में जा रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन में जा रहा हूँ, मैंने ये सब जो यहाँ सीखा है ग्रूमिंग क्लासेस में और जजेस से और आप लोग से हासिल करके, मैं वो सब वहां पे अप्लाई करूंगा। सिंपल। अगर आप चीजों को सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत सिंपल तरीके से डालेंगे ना, तो आंसर भी बनाना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन। किसी को और कोई डाउट है, यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज वील कॉल इट अ डे एंड वी कैन। सर, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतने अच्छे से समझाया और इतने क्वेश्चंस भी दिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। मेरा क्वेश्चन इसके अपार्ट है, मतलब जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो कर रखा है। मैं अभी मतलब फ्रेशर ही हूँ, मेरे पास कोई प्रोफाइल रेडी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है, मगर उसमें कास्टिंग कॉल्स वगैरह आते हैं। तो मैं अभी उनको अभी अपने करंट स्टेट के हिसाब से अपनी प्रोफाइल उनको किस तरह से शेयर कर सकता हूँ? कास्टिंग प्रोफाइल आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं या मॉडलिंग की? बोथ सर। बोथ। अच्छा। ठीक है, एक्टिंग के लिए आपको कोई ऐसा पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, अगर आप किसी को अपनी एक्टिंग प्रोफाइल भेज रहे हैं ना, मान लीजिए आई एम मुकेश छाबड़ा हाँ। कास्टिंग एजेंसी, ठीक है, और आप मुझे रैंडमली सामने से मेल कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या मेल करोगे? आप मेल करोगे अपने कुछ नॉर्मल पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स, ठीक है, वो आप कहीं पे भी खींच सकते हो। उसके लिए तो कोई, मैंने नहीं बोला कि कोई आउटफिट वाले पिक्चर्स चाहिए या पोलराइड चाहिए। पोलराइड जी आप सर। यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। पोलराइड आप भेज दीजिए। कुछ अच्छे फोटोज ऑब्वियसली आपने खींचे ही होंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। कहीं पे कोई शादी में, कोई फंक्शन में, खुद के फ्रेंड्स के साथ जब बाहर जाते हैं कैफे वगैरह में, 2-3 फोटो अच्छे वाले, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, गुड लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग, सनलाइट में, ओपन में, 2-3 फोटोज वो भेज दीजिए। फिर इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दीजिए, यस सर। ठीक है, कि हाय माय नेम इज मधुर डागा, 21 years old, आई स्टैंड 5 feet 10 inches tall एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। सिंपल। ओके। ठीक है, पोलराइड्स हो गया। पोलराइड्स हो गया। कुछ रैंडम 2-3 प्रोफेशनल पिक्चर्स हो गए, इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया, और आपके स्टैट्स हो गए। स्टैट्स मतलब हाइट, वेस्ट, मेजरमेंट, शू साइज, ये सारी चीजें। ठीक है, और लास्ट थिंग हो गया, अगर आपने एक्टिंग में कोई प्रीवियस काम किया है, ओके। लाइक अगर कोई ऐड किया है, कॉलेज में कोई प्ले किया है, उसका वीडियो है, कुछ भी किया है, वॉइस ओवर किया है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें, अगर आपने, लाइक दिस इज अ वेरी पैराडॉक्सिकल थिंग, अगर आपने पहले कोई काम किया है तो आपको इधर चांस मिलता है। जी सर। क्यों? क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज अ बिजनेस। प्रोड्यूसर आप पे पैसे लगा रहे हैं ताकि वो और पैसे बना सके। उनको आपको लॉन्च करके उनको कोई फायदा नहीं है। उनको तो, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो अपने पैसे बनाने हैं ना। तो अगर आप पहले कोई काम किए हैं, अगर आप पहले कोई ऐड किए हैं या मूवी की है, पहले लॉन्च होने से भी पहले अगर आप कोई मूवी की है ना, तो आपको लॉन्च हो जाएगा। ये बात है एक्चुअली। जी तो सर। इसलिए क्रैक करना और लॉन्च होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मॉडलिंग का रास्ता थोड़ा इजी होता है। मॉडलिंग से फिर आप एक्टिंग में जाइए, मॉडलिंग से पैजेंट्री में जाइए, पैजेंट्री से लोग, इतने लोग आपको जानेंगे तो हाँ, फेम आ गया। फेम मतलब अगर कल इसको लेके म्यूजिक वीडियो बनाएंगे या मूवी बनाएंगे तो कोई ना कोई तो देखने आएगा। प्रोड्यूसर जो पैसे लगाएगा उसके 50% तो रिकवर हो जाएंगे। जी सर। एंड बेस्ट ऑप्शन इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। फेम कलेक्ट करिए, अपॉर्चुनिटी हर जगह से आ जाएगा। कि इंस्टाग्राम में अगर आप, या यूट्यूब में अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लुक्स भी दिखाओगे, कम्युनिकेशन भी दिखाओगे, पर्सनालिटी भी दिखाओगे, प्रीवियस काम भी दिखाओगे, और पर्सनल लाइफ भी दिखाओगे। तो अगर मुकेश छाबड़ा जी आपकी इंस्टाग्राम देख रहे हैं ना, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा इसकी पर्सनालिटी ऋतिक रोशन जैसी है, इनको उस मूवी में कास्ट कर लो। क्योंकि वो चीज इंट्रोडक्शन वीडियो देख के या प्रीवियस वर्क देख के भी ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार इसको कास्ट करें नहीं करें। तो ये 5 चीज आपको भेजना है। और जहाँ तक आई मॉडलिंग की बात, मॉडलिंग के लिए अगर आप सामने से अप्रोच कर रहे हैं, तो वही पोलोराइड्स, पोलोराइड्स तो आप सबसे पहले खींच लीजिए अपने टेरेस पे जाके, या कोई भी वाइट प्लेन ऐसा कोई बैकग्राउंड हो, पीछे जी जाके सर। ब्लैक टी शर्ट, राउंड नेक, ब्लैक पैंट्स, और आप स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट और फुल एंड हाफ प्रोफाइल, और आप ओके नेट पे सर। सर्च करेंगे व्हाट आर द सेट ऑफ पोलराइड्स, आपको मिल जाएगा। वो भेज दीजिए। और पोर्टफोलियो मैंने बोल दिया कि बस 4-5 आउटफिट में अच्छे फोटोज, फुल लेंथ, एक फुल लेंथ और एक हाफ,
एक ओके हाफ और एक फुल लेंथ, कि आपकी हाइट वाइट कैसी है, और आपकी हाफ में अगर आपकी प्रोफाइल कैसी है, ईयरफोन का शूट हुआ, वॉच का शूट हुआ, चेन का शूट हुआ, हेयर प्रोडक्ट का शूट हुआ, उसके लिए। ओके सर, और ये थैंक यू। सारी बेसिक चीजें हैं, तो आप सब प्रिपेयर कर लो ना बेसिक में। फिर आप धीरे धीरे पैसिव इनकम का सोर्स करके, जॉब करके, किसी को कुछ सिखा के पैसे कमा के, शूट्स करके पैसे कमा के, फिर आप, अगर आप चाहते हो एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर दो, थिएटर ग्रुप में जाके सीखो, वहाँ के वीडियोस उठा के फिर आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को मेल करो, मैसेज करो, हर हफ्ते करो, बार बार करते हो तो रिप्लाई नहीं है, क्योंकि हर रोज लाखों हजारों लोग भेज रहे हैं। आपका यस ऑडिशन कहाँ खो गया आपको पता भी नहीं है। हर रोज भेजना, हर हफ्ते भेजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लाई आ गया, उसके बाद भी 1 महीना 2 महीना वेट करो, कोई काम नहीं आया, फिर उनसे फॉलो अप लो। क्या है सर, आई वांटेड टू फॉलो अप, कुछ काम होगा तो बताइएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। Sir, I have one question. यस। Sir, I had heard this question somewhere that what is your biggest strength and tell us about your biggest weakness. So, what should be the appropriate means way आंसर, to approach this question? Yeah. सी इट इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आप ही को पता होगी ना। Specifically about weakness. So, हम्म। मतलब कैसे बताया हम वीकनेस के लिए, मतलब जो है वही या फिर वीकनेस मैंने बोला, यू कैन नॉट बी अ लूज कैनन। आप ये नहीं बोल सकते मैं तो यार दोपहर को 3 बजे सो के उठता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये मेरी वीकनेस है। दैट इज नॉट अ वीकनेस, दैट इज हम्म, अनअवेयरनेस, दैट इज अनप्रोफेशनलिज्म। अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे तो वहां पे आपके मार्क्स और ज्यादा कट जाएंगे। okay. मैं तो रात को 3 बजे सोता हूँ, 3 बजे सो के उठता हूँ, है ना। मैंने तो मॉडलिंग वॉडलिंग के लिए सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, नहीं वो सब नहीं चलता। बिगेस्ट वीकनेस मैंने अपने बारे में क्या बोला था, आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर। मैं 10 काम एक साथ नहीं कर सकता, मैं एक टाइम पे एक काम पे फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। या फिर माई बिगेस्ट वीकनेस इज आई एम नॉट इन द बेस्ट शेप। मेरी जो बॉडी है अभी बेस्ट शेप में नहीं है, लेकिन मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, और मैं अगले 6 महीने में अपनी बॉडी बेस्ट बना लूंगा जितनी मैं बना सकता हूँ, है ना। या फिर मैं कभी कभी नेगेटिव सोच लेता हूँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन दैट, कि मैं एक पॉजिटिव थिंकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज माई बिगेस्ट वीकनेस, कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ कभी कभी, या मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। ठीक है यार, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब में सब अवेलेबल है। आप पढ़ो, एजुकेट करो, खुद के अवेयरनेस फैलाओ, और फिर आप देखो कि आपको किसी प्रीवियस विनर्स के आप आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर राउंड देखो, कंपटीशन देखो, वहां पर किसने क्या बोला, किसकी पर्सनालिटी आपके साथ ज्यादा मैच करती है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करो। इट विल बी इजियर। Thank you, sir. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? No, yeah, you. No. नो, आई थिंक देन वी आर डन फॉर टुडे। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वीक। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, और आप सब अपने प्रोफेशन और पैशन पे काम करते रहें, सबको प्रोफाइल भेजते रहें, डिलीजेंटली और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली आप लोग अपने ड्रीम्स की वे फोकस करते रहें, मैं भी करूंगा। एंड देन वील अपडेट ईच अदर नेक्स्ट वीकेंड पे। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर द पेशेंटली लिसनिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, सी Hello, यू। sir. There is one यस। question that I want you said that list of people you are doing. Can you share the list of people in the chat or the श्योर, आई शेयर इट विद जिमी मैम, एंड शील शेयर इट विद यू गाइस। चैट पे तो लिखना अभी टाइम लग जाएगा, ठीक है। I'll share it with Jimmy in some time, and then we'll share it to you guys. Okay? Okay. Chalo guys, see you. Bye bye. Have a lovely weekend. Thank you so much.
હેલો કેટલા જોઈએ હા બટ જોઈએ કેટલા 5 પેકેટ 5 નંગ હા છે એકમાં 3 નંગ આવે ત્યાંથી